Hello. Good morning. Today we are going to learn Boolean algebra. Okay. So here in front of you, you can see the slides. Okay. One question I written. What is Boolean algebra? Okay. So we see how you can define the Boolean algebra, right? So Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital circuit. Okay. Now you know you are aware with the basic logic gates and or not. Okay. So similarly, you have deduce uh, logic circuitry. You have design logic circuitry, okay, with the help of and or not logic gates. So here whatever expression which we write, that is logical expression. Okay, so that's why we will use here for the analyzations of that logic expression. So Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuit. Okay, it uses only the binary numbers, okay, like 0 and 1. Okay, it is also called as binary algebra or logic algebra. Generally, Boolean algebra is was invented by a George Boole in 1954. George Boole was one of the scientists. Okay, he invented that Boolean algebra for the deduction or analyzation of that logical expressions. Okay, so that's why here our topic Boolean algebra is here. Now we will see what are the rules are there for Boolean algebra. Okay, so here I have given some sets of rules that are listed one by one. So following are the important rules used in Boolean algebra. Like first one, variables use can have only two values. Okay, whatever variable, for example, we will able to write a, b, c, d. These are the variables. Okay, or x, y, z will be the variables. Okay, so that's why here variable can have only two values. Okay, like binary 0 or binary 1. Binary 0 is represented as logic low, okay, and binary 1 is represented as binary logic high. Okay, now complement of a variable is represented by a over bar. Okay, so over bar is there written over the characters or variables like a bar, b bar. Example, I have written complement of variable b is represented as b bar. Okay, आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन b दिया है और b कैरेक्टर और b का वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया है b bar. Okay, so that's why we will say it is a over bar. Okay, if b is equal to 0 means if I consider a value of b is equal to 0, then b bar is referred as 1. Okay, b bar is referred as 1 means here the value of b is 0 means b ka complement, b bar means complement of variable b. तो complement of 0 क्या होगा? 0 का complement होगा 1. So that's why b bar की वैल्यू हो जाएगी 1. Similarly, in case b की वैल्यू अगर 1 रहा तो b बार की वैल्यू क्या रहेगी? तो b की वैल्यू 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा 0. सो दैट्स व्हाई b बार का वैल्यू रहेगा 0. आई होप गेटिंग एवरीवन. कोई डाउट रहा तो मुझे पूछना. कोई डाउट नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम. I hope it is not much difficult. I hope you already learn in the first year level. Okay, so it is just the use of NOT gate. Okay, so that's why this is the second rule. Complement of variable is represented by an over bar. Okay, similarly the third rule that I would like to tell you here,
or operation. Okay, or operation. So oring of the variable is represented by plus sign. यानी अगर हम और ऑपरेशंस कैरी आउट करना चाह रहे हैं तो और ऑपरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन के द्वारा. और का ट्रुथ टेबल, और गेट का ट्रुथ टेबल पता है सभी को. और गेट इज यूज्ड फॉर addition of logic bits. Okay, so that's why here for addition plus sign is used. Okay, for example, or of a b c is represented as a plus b plus c. Okay, अगर आप और ऑपरेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो और ऑपरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हो a plus b plus c. Okay, similarly the and operation के लिए फोर्थ रूल रहेगा. तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल सभी को याद होगा. जनरली एंड गेट इज यूज्ड फॉर डूइंग द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन. ओके, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस के लिए जनरली 2 और मोर वेरिएबल में हम उसे यूज करते हैं. तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यानी एंड ऑपरेशन यहाँ पर डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दैट्स व्हाई डॉट ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द वेरिएबल लाइक a डॉट b डॉट c. ओके, सो a डॉट b यानी a और b में एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया गया है. b डॉट c यानी b और c में एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया है. Sometimes the dot may be omitted. यानी कभी कभी हम अगर a डॉट b डॉट c लिखते हैं तो इन केस उसी की जगह a b c लिखा करते हैं. तो a b c means it is very exactly similar to a dot b dot c, right? Now I am going to tell you here various Boolean's law. Actually we are going to learn about the Boolean algebra. So that's why under this here you can see the various laws are available under the Boolean. Okay, so that's why I am just telling you here one by one. Okay, just I am adjusting the slides for you. Okay, so see, now it will be very visible to you. So there are 6 types of Boolean's law. Okay, that I am telling you one by one. Okay, first law is commutative law. Okay, so commutative law will say here any binary operation which satisfy following expression is referred to as commutative operation. Okay, तो commutative operation आपको इस तरह रिप्रेजेंट किया है. 2 वेज है. एक आपका यहाँ पर रहेगा प्रोडक्ट के लिए, डॉट के लिए, और दूसरा रहेगा प्लस के लिए या एडिशंस के लिए, यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एडिशंस के लिए रहेगा. सी, पहला रूल कम्यूटेटिव में a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. यानी a डॉट b अगर करते हो तो उसका जो आपको एग्जैक्ट सिमिलर रिप्रेजेंटेशन आप b डॉट a भी लिख सकते हो. ओके, यानी a डॉट b को आप b डॉट a भी लिख सकोगे. ओके, सिमिलरली सेकंड रूल इज a प्लस b. ओके, तो a प्लस b अगर आप लिखते हो तो इट इज वेरी एग्जैक्टली सिमिलर टू b प्लस a. यानी a प्लस b में जो रिजल्ट आएगा वह b प्लस a में भी आएगा. यानी आप a प्लस b की जगह b प्लस a लिखा तो भी चलेगा, या b प्लस a की जगह a प्लस b लिखा तो भी चलेगा. ओके, बट हियर बोथ ऑपरेशंस आर सिमिलर. ओके, now here I am going to tell you here how you can understand it with the help of logic gates. Okay, or with the help of logic circuit. Okay, so that's why in bold letter here it is written commutative property of multiplication. पहला जो रूल है वह रूल यहाँ पर आपको शो किया है. a डॉट b ना लिखते हुए यहाँ पर लिखा है a b is equal to b a. यानी it is exactly similar to
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको वहां पर लॉजिक गेट बताया है। लॉजिक गेट कौन सा है वो पहचान सकते हो क्या? कोई बताएगा? हाँ, एक बच्चे ने बोला यहाँ पर इट इज विच गेट एंड ओके it is AND gate. Okay, so that's why here dot is used for AND operation. Okay, so here पहले AND गेट में आपको शो किया है इनपुट A और B. ओके, सिमिलरली आपको बॉटम साइड में सेकंड AND गेट शो किया है, उसमें इनपुट का पोजीशन चेंज हुआ है बी ए। ओके, तो क्वेश्चन इज both are same, so answer is also given in the diagram. Okay, you will get the same result from first AND gate or second AND gate. Okay, so आपने पहले वाला AND gate में A और B इनपुट अप्लाई किया तो भी आपको रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपने इंटरचेंज कर लिए इनपुट्स में B और A तो भी रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। ओके, अभी साइड डायग्राम अगर देखोगे, देखिए वहां पर कुछ स्विचेस बताए हैं और एक लाइट बताया है। ओके, दो वायर्स हैं वहां पर ओके पैरेलल में। ओके, तो ए और बी स्विच वहां पर बताया है और वहां लाइट के द्वारा बताया है कि भाई यहाँ यह लाइट कब ग्लो करेगा, जब ए और बी इनपुट प्रेजेंट रहेंगे तो। ओके, so when A and B both switch are in closed situation, then you will get glow of light. Otherwise, when A and B both are open, the light will not glow. Same case will happen below. In terms of second one, here the switches are interchanged. Instead of A there is a B, and instead of B there is A. So say switch are interchange, but the output will be same. Getting everyone? कोई doubt रहेगा? Okay. So this is a commutative property of multiplication. Okay, A into B is equal to B into A. Now we will see the second one property, A plus B is equal to B plus A. Same thing I am showing with the help of another diagram. Here again, can you tell me which logic gate is used here? So here OR gate is used. Generally OR gate is used for what? Additions proper point of view. Okay, it will shows logical add. Okay, so that's why A plus B output is obtained in first one logic gate, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वह लॉजिक गेट के द्वारा आपको वहां आउटपुट आएगा। सो वहां इनपुट अप्लाई किए हैं A और B। ओके, और बॉटम साइड में सेकंड वन लॉजिक गेट वहां पर दिया है, वह लॉजिक गेट्स में आपको बताया है बी और ए एज अ इनपुट। अगर बी और ए और बी इसमें अगर आप कोई डिफरेंस देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, आपको आउटपुट सेम मिलेगा। ओके, तो यहाँ इस तरह का लॉजिक गेट का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकोगे। राइट हैंड साइड में देखिए आपको स्विचेस के द्वारा बताया है, वहां पर दो पार्ट किए हैं। ओके, एक देखिए पहला पार्ट ए बी और लाइट, और दूसरा दिया है बी ए और लाइट। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ दोनों में आपको सेम आउटपुट मिलेगा। आपको अभी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर व्हेन ए और बी बोथ आर
when both are present or anyone will be present, then the light will glow. Okay, generally here addition property यानी commutative प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज की है, तो ए अगर प्रेजेंट होगा तो भी लाइट ग्लो होगा, अगर बी प्रेजेंट होगा तो भी लाइट ग्लो होगा, ए और बी दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे तो भी लाइट लाइट यहाँ पर ग्लो होगा. गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई आप ए बी की जगह बी ए स्विचेस भी डाले तो भी आपको आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन वहां पर सेम आएगा. ओके, कोई डाउट भाई किसी को? अगर नहीं समझ में आया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर द लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल एंड और इनके ट्रुथ टेबल देखिए, उनके ट्रुथ टेबल के हिसाब से आपको ये डायग्राम समझना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, so that's why this is a first law of Boolean algebra, commutative property. Okay, now we will go for the next one. Okay, second is the associative property. Now associative property is shown like this. Now I am highlighting it, associative property. This law states that the order in which logical expression are performed is irrelevant as their effect is the same. Okay, पहला लॉ बताया है एसोसिएटिव में, आपको ए इंटू बी ब्रैकेट में दिया है और ब्रैकेट के बाहर है डॉट सी. अगर आप इनमें इंटरचेंज करते हो, ए की जगह ए इंटू बी की जगह यहाँ पर ए डॉट इन ब्रैकेट बी इंटू सी भी लिखा तो भी चलेगा. ओके, तो इस तरह मैं उसे फिर से रीड करता हूं फर्स्ट ऑर्डर में, ए डॉट बी इंटू सी और ए डॉट बी इंटू सी. ओके, तो ए बी ब्रैकेट में है, इधर राइट हैंड साइड में बी इंटू सी ब्रैकेट में है. ओके, सेकंड है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी. ओके, is directly proportional to a plus in bracket b plus c. Both are same. I hope just by reading, just by observations, you got the idea of this associative law. आ गया ना ध्यान में? चलिए अभी यहाँ पर उसको प्रूफ देखते हैं, यहाँ पर उसको समझ लेते हैं. ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बताता हूं. सी, ऑब्जर्व द डायग्राम. Okay, in case if you are writing it on your notebook, rough book, so you write it, no problem. Okay, so this is a second property. It is associative property of multiplication. A in bracket b into c is equal to in bracket a into b out of bracket c. Okay, now here in left hand side with the help of logic gate is shown how you can prove it, or in the right hand side with the help of switches it is shown. Okay, so I am telling you one by one both the things. Okay, if you see first one diagram, so see mouse cursor, I am just rotating over the first one logic gates in left hand side. Okay, here you can see its output is a into bracket b into c, but the question is how you will get it. So for that here we will need two logic gates. Both logic gates are AND logic gate. Okay, so AND will have this property of multiplication. So that's why here the second one logic gate shown here, it has input B and C. So if B and C input are applied, the output of this logic gate is B into C. हाँ, अभी यहाँ पर आपको पहले जो एंड गेट है इसका आउटपुट मिलेगा B इंटू सी. ये अप्लाई किया है सेकंड एंड गेट को, सेकंड एंड गेट के सेकंड इनपुट को, और फर्स्ट इनपुट के लिए
ए इनपुट अप्लाई किया है। तो यहाँ ए फर्स्ट के लिए रहेगा और बी इंटू सी सेकंड इनपुट के लिए इनपुट रहेगा। सो द आउटपुट ऑफ द सेकंड एंड गेट इज ए इंटू बी, ए इन ब्रैकेट बी इंटू सी। इस तरह का आउटपुट आपको यहाँ पर इस लॉजिक गेट के, इस लॉजिक सर्किट के द्वारा मिलेगा। ओके, अगर आप राइट हैंड साइड में वही सर्किट देखोगे तो यहाँ वैसा ही आपको डिजाइन करके दिया है स्विच के द्वारा। ए स्विच देखिए ऊपर के साइड में है और नीचे के साइड में आपको बी और सी स्विच यहाँ पर कनेक्ट करके दिया है। तो ए जब कनेक्ट होगा तभी इस करंट यहाँ पर पास होगा ए से, वह बी तक रीच होगा। लेकिन बी और सी अगर ओपन है तब तक लाइट ग्लो होगा क्या? नहीं, आपका आंसर रहेगा नहीं। अगर आपने बी स्विच क्लोज किया, बी के द्वारा यहाँ पर करंट फ्लो होगा, सी तक वो रीच होगा। सिमिलरली जब सी क्लोज करोगे तो वहां लाइट के तरफ करंट होगा और वहां लाइट ऑन होगा। तो इस तरह ये लॉजिक सर्किट वेरीफाई करेगा इस लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। तो आपको यहाँ पर प्रूव मिलेगा ए इन ब्रैकेट बी इंटू सी का। ओके, नाउ सेकंड जो है इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए बी आउट ऑफ ब्रैकेट सी है। तो अभी मैं यहाँ इसे प्रूव करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। नीचे का जो डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड में वह डायग्राम देखते हैं। अभी वहाँ ए इंटू बी है इन ब्रैकेट। तो ए इंटू बी ब्रैकेट में मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मैंने पहला एंड गेट के लिए वह इनपुट अप्लाई किए हैं ए और बी। ओके, वह फर्स्ट एंड गेट के लिए अप्लाई किए हैं और इस फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट मिलेगा मुझे यहाँ इस पॉइंट के लिए, यानी एंड गेट 2 के इन फर्स्ट इनपुट में मुझे मिलेगा ए इंटू बी। गेटिंग एवरीवन? एवरीवन इज वाचिंग दिस? ओके, जब तक आप यहाँ पर वॉच नहीं करोगे वीडियो को तब तक आपको समझेगा नहीं। तो ए इंटू बी आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड गेट के आउटपुट के ऊपर मिलेगा और वही आउटपुट बी सेकंड इनपुट, सेकंड एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को अप्लाई किया है। सेकंड एंड गेट का सेकंड इनपुट है सी, तो वह सी डायरेक्ट यहाँ पर रीच हो रहा है। तो आपको यहाँ इस तरह दोनों इनपुट सेकंड एंड गेट के लिए अप्लाई किए हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा ब्रैकेट इन ब्रैकेट ए इंटू बी आउट ऑफ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, तो इस तरह आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी इसी तरह मैं लॉजिक गेट यहाँ पर स्विचेस के द्वारा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो स्विचेस के द्वारा जब इंप्लीमेंट करोगे तो देखिए कैसा मिलेगा। स्विच के द्वारा राइट हैंड साइड में देखिए बॉटम साइड में जैसा लॉजिक सर्किटरी डिजाइन किया वैसे यहाँ पर स्विचेस की प्लेसिंग भी की। ए और बी अप साइड में है और सी बॉटम साइड में है विथ लाइट। ओके, तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर ए बी सी प्रेजेंट रहेगा तो ही आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर लॉजिक ए, लॉजिक बी और लॉजिक सी की वैल्यू 1 रहेगी तो ही आउटपुट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और यहाँ लाइट ग्लो होगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पर? अगर नहीं समझ में आया तो लॉजिक गेट की यहाँ पर इनपुट की वैल्यू पुट आउट करो। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट आउट करोगे तो आपको यहाँ पर इमीडिएटली एक्सप्रेशन का आउटपुट वैसा का वैसा ही मिलेगा। I hope this much is enough for your understanding. If not, please contact on my WhatsApp. No problem. Okay. Now, third one. Now here this is about the first associative property of multiplication. Now second property is associative property of addition. अभी हम addition के द्वारा भी इसे देखते हैं। Okay, तो यहाँ a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी ओके इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। इस तरह की प्रॉपर्टी है भैया भी ये एसोसिएटिव। अभी इसको प्रूव करना है। तो इस प्रूफ के लिए देखिए पहला अप साइड का लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम दिया है, लॉजिकल डायग्राम। ओके, यह लॉजिकल डायग्राम में देखिए यूज ऑफ और गेट किया है। ओके,
ये और गेट इस तरह इस पैशन में कनेक्ट किए हैं, तो मुझे क्या चाहिए है, ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इन ब्रैकेट चाहिए। तो बी प्लस सी मुझे इन ब्रैकेट चाहिए, तो वैसा मिलाने के लिए मैं पहले एडिशन कर लूंगा बी और सी की। तो बी और सी का एडिशन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इस तरह, बी और सी एज इनपुट टू द और गेट, और यह अप्लाई करने के बाद इस फर्स्ट जो सेकंड और गेट है उसके आउटपुट में मुझे मिलेगा बी प्लस सी। अभी बी प्लस सी वह इनपुट रहेगा फर्स्ट एंड गेट का, यानी जो एंड गेट यहाँ पर आखिरी आउटपुट साइड में है उसका पहला इनपुट रहेगा ए और सेकंड इनपुट रहेगा बी प्लस सी। तो ए और बी प्लस सी में और ऑपरेशन होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, तो इस तरह ये लॉजिक गेट यहाँ मुझे इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए हेल्प करेगा। अभी सेम केस में यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सर्किट यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्विचेस और लाइट के द्वारा इंप्लीमेंट की है। ओके, जैसे ही मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ आपको शायद वहां पर दिख रहा होगा। ओके, यहाँ ए बी और सी मैंने यहाँ डायरेक्टली यहाँ पैरेलल कनेक्ट कर दिए, और वहाँ जो लाइट है वो लाइट यहाँ तीनों के पैरेलल में आउटपुट में कनेक्ट हुआ है। यानी ए यहाँ पर डायरेक्ट है लेकिन बी और सी यहाँ पर दोनों पैरेलल है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ बी और सी का आउटपुट यहाँ पर इस जंक्शन के पॉइंट के ऊपर मिलेगा, तभी यहाँ पर ए के साथ ओ मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद लाइट के पास होगा। तो यानी जब यहाँ पर बी और सी प्रेजेंट रहेंगे और उसका आउटपुट मिलेगा तो ही वह ए के साथ मिक्स होगा और आपको लाइट ऑन होने में हेल्प करेगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा? चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। ए प्लस बी इन ब्रैकेट में थे प्लस सी बाहर है ब्रैकेट के। तो इन ब्रैकेट ए प्लस बी है प्लस सी यहाँ पर रहेगा। तो हमें इस तरह की एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ, अभी a प्लस बी ब्रैकेट में आना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर पहले लॉजिक गेट को यहाँ पर a और b इनपुट अप्लाई किए हैं। a और b इनपुट अप्लाई करने के बाद आपको इस और गेट के आउटपुट में, पहले इस और गेट के आउटपुट में आपको मिलेगा a प्लस बी। ओके, तो फर्स्ट इनपुट ऑफ सेकंड और गेट विल बी a प्लस बी, और second input of second OR gate is C. So that's why here at the output you will get A plus B ब्रैकेट में मिलेगा प्लस C ब्रैकेट के बाहर रहेगा। यानी अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो ब्रैकेट अगर नहीं रहा तो भी चलता है, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C। ओके, आप इस तरह इस लॉजिक सर्किटर को डिजाइन किए हो, तो इसी को स्विचेस के द्वारा और लाइट के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ सिर्फ फर्क क्या रहेगा, चेंज क्या रहेगा, ए और बी को यहाँ क्लब किया है और सी उसके बाहर रहेगा और वह लाइट को ऑन कराएगा। गेटिंग एवरीवन? ओके, चलेगा। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर इस तरह कंडीशंस यहाँ पर दी है, ए इन ब्रैकेट ए इनटू ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। ओके, मीन्स ए इनटू ब्रैकेट में दिया है बी प्लस सी, सो दैट्स वाई यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये प्रोडक्ट को, तो ए को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट में, तो ए इंटू बी हो जाएगा आउटपुट में प्लस ए इंटू सी हो जाएगा आउटपुट में। गेटिंग एवरीवन? जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन एबल टू सी। So that's why a in bracket b plus c is equal to a dot b plus a dot c. Okay, अभी डॉट ऑपरेशन यहाँ पर किसके द्वारा करना है,
आपको अभी तक आइडिया मिल गई होगी। डॉट ऑपरेशन हम जनरली एंड गेट के द्वारा करते हैं और एडिशन ऑपरेशन हम और गेट के द्वारा कैरी आउट करते हैं। गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ अभी हम यहाँ पर इसको लॉजिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा, यहाँ लॉजिक गेट्स के द्वारा यहाँ सॉल्व करते हैं। सी ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरह सॉल्व करेंगे। सो दैट्स व्हाई पहला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने पहले का डॉट है तो एंड ऑपरेशन, प्लस है तो और ऑपरेशन। तो बी प्लस सी के लिए और गेट का यूज किया है, और गेट के इनपुट में अप्लाई किया है बी प्लस सी, और गेट के आउटपुट में मिलेगा आपको बी प्लस सी। ओके, तो ये बी प्लस सी अपने अप्लाई किया है एंड गेट के सेकंड इनपुट को, और एंड गेट का फर्स्ट इनपुट का अप्लाई किया है ए। तो आपको आउटपुट में रिजल्ट कैसा मिलेगा? ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। गेटिंग एवरीवन? अभी इसी तरह का लॉजिक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर सॉल्व किया तो आपको आउटपुट में मिला है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह का लॉजिक सर्किट हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ इस तरह का लॉजिक सर्किटरी अडॉप्ट करेंगे। अभी इंटू है यानी a इंटू बी है, तो a इंटू बी यहाँ पर एंड गेट के द्वारा होगा, a इंटू सी है तो वो भी यहाँ पर एंड गेट के द्वारा ही होगा, और प्लस यानी प्लस ऑपरेशन है वह होगा और गेट के द्वारा। तो देखिए a इंटू बी ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड डायग्राम है उसमें ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर आपको बताया है एंड गेट का यूज। एंड गेट का यूज यहाँ पर करते समय ए और बी अप्लाई किए हैं उसके इनपुट में, और आपको मिलेगा ए इंटू बी। सिमिलरली सेकंड जो गेट है, सेकंड एंड गेट है, वहां अप्लाई किए हैं ए और सी। ए कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया है, ऊपर से ही लाइन खींच के यहाँ पर उसको इनपुट को दिया है, और सी सेपरेट दिया है। सो दैट्स व्हाई ए इंटू सी आउटपुट आपको सेकंड एंड गेट के आउटपुट में मिलेगा। अभी आपको a इंटू बी और a इंटू सी मिल गया। अभी यह आउटपुट हम और गेट के इनपुट को अप्लाई करते हैं। तो और गेट के इनपुट को अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिलेगा ए बी इंटू ए सी। इस तरह का एक्सप्रेशन अपने को रिजल्टेंट में मिलेगा। गेटिंग एवरीवन? हाँ, अभी वही सेम सर्किटरी हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की है विद हेल्प ऑफ लॉजिक स्विचेस के द्वारा और लाइट्स के द्वारा। ओके, तो यहाँ पहला जो राइट हैंड साइड में है वह आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया है। ए स्विच बी स्विच ऊपर के साइड में कनेक्ट, ओके, ए स्विच सेपरेट कनेक्ट किया है और बी और सी यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो ए ऐड हो रहा है, सॉरी ए मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और सी ऐड हो रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ आपको लाइट का ग्लो हो रहा है, यानी व्हेन ए इज प्रेजेंट then no light will be glow, but when B and C will be present then no light will be glow, but when A and B and C both three are present then only the light will be glow. ओके, तो ऐसी सिचुएशन रहेगी। हाँ, कोई बोलेगा सर यहाँ पर अगर B भी रहा तो चल जाएगा, या ओके A यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बी प्रेजेंट रहेगा तो भी यहाँ पर लाइट ग्लो होगा, या ए और सी प्रेजेंट रहा तो भी लाइट ग्लो होगा। गेटिंग एवरीवन? एंड डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन विल वर्क्स फॉर बोथ। ओके, चलिए नीचे वाली डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर भी इस तरह के एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट की है, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी इंप्लीमेंट की है। तो ए और बी यहाँ पर प्रोडक्ट है, इस वजह से यहाँ एक ही लाइन में सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ए इंटू सी है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ सीरीज में कनेक्ट किए हैं, और ये सीरीज में बहुत यहाँ पैरेलल में आ गए, और यहाँ उसी तरह लाइट को आपको ऑपरेशन में दिखाया गया है। ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन इज एंड लॉ। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी बुलियन एक्सप्रेशन की, फोर्थ लॉ रहेगा एंड लॉ। एंड ऑपरेशन यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है।
ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर एंड ऑपरेशन यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट किया है, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर आप जीरो इंटू ए करोगे या जीरो इंटू बी करोगे या जीरो इंटू एनीथिंग करोगे तो आपको रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। ओके, सेकंड है वन इंटू ए करोगे तो आपको ए मिलेगा। ओके, वन इंटू ए करोगे तो वन का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ए का इंपॉर्टेंस रहेगा, सो दैट्स वाई वन इंटू ए रहेगा, क्योंकि वन इज वैलिड। ओके, बट जीरो इज नॉट वैलिड, सो दैट्स वाई जीरो आपको निकल जाएगा, सो दैट्स वाई जीरो वहां पर ए को निकल देगा। सो जीरो इंटू ए विल बी जीरो, वन इंटू ए विल बी ए। ए इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होगा, ए इंटू ए ही होगा। ओके, और फोर्थ है यहाँ पर ए इंटू ए बार इज इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर आप यहाँ पर इसे समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो दैट्स वाई एंड गेट का ट्रुथ टेबल रहेगा जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और वाई। ओके, हाँ देखिए, एंड गेट का लॉ यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल बताता हूँ। ओके, तो ए इंटू जीरो यहाँ पर देखिए ट्रुथ टेबल में। ओके, ट्रुथ टेबल में देखोगे तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल क्या है, जीरो इंटू जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग, आप अगर जीरो इंटू एनीथिंग करोगे तो रिजल्ट जीरो ही मिलने वाला है। सो दैट्स वाई यहाँ जीरो इंटू वन करोगे तो भी जीरो, वन इंटू जीरो करोगे तो भी जीरो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब वन इंटू वन करोगे तो ही आपको रिजल्ट वन मिलता है। उसी के ऊपर यह लॉ बताया गया है, सी यहाँ पर जीरो इंटू एनीथिंग यहाँ पर जीरो ही शो किया है। ओके, सिमिलरली अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो तो ए की वैल्यू जीरो रह सकती है या वन भी रह सकती है, तो यहाँ जीरो या वन भी रहा तो भी यहाँ पर डिपेंडेंट किसके ऊपर रहा, तो यहाँ आउटपुट डिपेंडेंट रहा ए के ऊपर। सो दैट्स वाई यहाँ ए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ए इंटू वन मीन्स ए रिजल्ट यहाँ पर बताया है। देखिए ट्रुथ टेबल में अगर देखोगे तो यहाँ जीरो इंटू वन यहाँ पर जीरो है, वन इंटू जीरो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ ए की वैल्यू मायनियत रख रही है। सो दैट्स वाई ए की वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई इसी रिजल्ट बताया है ए इंटू वन मीन्स ए इंटू ए। ऑब्वियसली अगर ए की वैल्यू वन रखते हो तो यहाँ ए का रिजल्ट वन ही मिलेगा या ए का रिजल्ट ए ही मिलेगा। सिमिलरली ए एंड ए बार है तो ए एंड ए बार यानी जीरो या वन। ओके, यानी ट्रुथ टेबल में देखोगे सेकंड और थर्ड रो, तो ट्रुथ टेबल में आपको यहाँ पर जीरो इंटू वन जीरो ही मिला है, वन इंटू जीरो जीरो ही मिला है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर आपका ट्रुथ टेबल रहेगा। सो दैट्स वाई यह फोर्थ जो लॉ है ए इंटू ए बार यहाँ पर जीरो बताया है। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट इसमें? ओके, सब यहाँ पर ये जो लॉ है ये पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। देन नेक्स्ट वन लॉ इज और गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। सो दैट्स वाई और गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ मैं आपको शो आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ और गेट का ट्रुथ टेबल देखिए पहले। ओके, यहाँ और गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर एडिशन ऑफ बिट्स बोल रहा है। सो दैट्स वाई जीरो प्लस जीरो रिजल्ट इज जीरो। ओके, तो जीरो प्लस जीरो यहाँ शो आउट किया है इसी तरह। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको बताया है a plus 0 okay is a। okay, a plus 0 means a की वैल्यू क्या है, either it will be 0 either it will be 1। so that's why 0 या 1 हो सकती है। so that's why यहाँ वह वैल्यू के ऊपर आपको यहाँ आउटपुट डिपेंडेंट रहेगा। so that's why 0 प्लस 0 यहाँ डायरेक्ट ना देते हुए यहाँ पर लिखा है a प्लस 0। ओके, so that's why a may be 0 or a may be 1। okay, if it is 0 result is 0, if it is 1 result is 1। in the same fashion your second law is given 0 plus 1 is equal to 1 means here
it is given 0 plus 1 means 1, 1 plus 0 means 1. Okay, so that's why here it is given a plus 0 means a may be 0 or a may be 1. Okay, if it is 0 then also 1, if it is 1 then also 1, its output is 1. Okay, there is no 2. हाँ, a अगर 1 है तो 1 plus 1 2 नहीं होगा, ध्यान में रखो। a ये लॉजिकल एडिंग है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये लॉजिकल एडिंग में 1 plus 1 में यहाँ पर रिजल्ट आता है 1। ओके, यहाँ कैरी, यहाँ पर सॉरी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर यहाँ 1 plus 1 का एडिशन अगर लोगे एग्जैक्टली बाइनरी एडिशन में तो आएगा 0। यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई a plus 1 आएगा 1, ध्यान में रखना। सिमिलरली a plus a रिजल्ट में आएगा a plus a रिजल्ट देगा a। ओके, यानी 1 a की वैल्यू रहेगी तो अगर 1 रहेगा, सो दैट्स व्हाई 1 plus 1 रिजल्ट विल बी 1। ओके, सो दैट्स व्हाई a की वैल्यू जो अज्यूम हमने की है 1 तो वह 1 ही रहेगा। ओके, अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 अगर रिप्रेजेंट की तो 0 और 0 को कॉम्प्लीमेंट a बार बोले तो इट्स कॉम्प्लीमेंट 0 plus 1, 0 plus 1 आपको ट्रुथ टेबल में मिलेगा 1, या अगर आपने a की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट की तो a बार की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0, तो 1 plus 0 will be 1। okay, means it validating the OR gate truth table। okay, so that's why remember ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, it is a OR law, so that's why OR gate का ट्रुथ टेबल यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। ओके, लास्ट लॉ बताता हूं, इन्वर्शन लॉ। ये नॉट ऑपरेशन के ऊपर वर्क करता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर नॉट ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर वर्क करते समय यहाँ देखिए एक सेंटेंस मैंने लिख के दिया, द इन्वर्शन लॉ स्टेट्स दैट डबल इन्वर्शन ऑफ वेरिएबल रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ। यानी ए बार का वैल्यू आपको पता है, ए बार यानी अगर ए बार बोले तो इट विल बी, आपको ऊपर मैंने बताया ए बी, सॉरी हाँ, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर एक्सप्रेशन बताया, पहले ही बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवर बार, सो दैट्स व्हाई if b is equal to 0 then b bar is equal to 1 और b is equal to 1 means b bar is equal to 0, बराबर है। so that's why अगर मैंने यहाँ पर b is equal to 1 लिया है और मैंने यहाँ पर b बार के ऊपर और एक बार दे दिया, यानी इसका मतलब है b बार यानी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, गॉट माय पॉइंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी बी बार यानी उसकी वैल्यू है 0 और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई द सेम थिंग इज नरेटेड इन द बुलियंस लॉ, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज गिवन इन द एक्सप्रेशन, इट इज लाइक दैट ए बार बार। ओके, ए के ऊपर 2 लाइन यानी उसको हम इस तरह रीड करेंगे, ए बार बार यानी 2 बार हो गए, यानी 2 बार यहाँ पर नॉट ऑपरेशन कैरी आउट किया गया ए के साथ, तो क्या होगा ए के साथ अगर 2 बार ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन अगर कैरी आउट किया गया तो रिजल्ट हो जाएगा 0, तो यहाँ मुझे सॉरी रिजल्ट आ जाएगा ए। तो इस तरह मुझे यहाँ पर इस तरह ये इन्वर्शन लॉ वर्क करेगा। ओके, फिर डाउट रहेगा भाई किसी को? गेटिंग एवरीवन? ओके,